السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ آج اس موقع پر آپ سبھی لوگوں کی محنت، جدوجہد، کوشش، تعاون اور دعا کی بدولت اللہ پاک نے خدمت کا موقع دیا۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے ان ذمہ داران کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس کی بنیاد پر، مجلس کے کام کی بنیاد پر مالیگاؤں کے لوگوں نے جس طرح مجھے چن کر کے دیا ہے اور مجلس کی جو پالیسی ہے، میں اس پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے انشاءاللہ 5 سال اپنی بس بھر کوشش کروں گا اور ہر وہ کام جو مجھ سے ہو سکے گا میں کر کے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ کوئی کوتاہی انشاءاللہ نہیں ہوگی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم تو سبب اور ذریعہ ہیں۔ اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ محنت کی تو انشاءاللہ کام ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ میں ان حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مالیگاؤں تشریف لائے، آپ نے 12-13 دن رہ کر کے مالیگاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو ایک ایک فرد تک آپ نے پہنچایا، جس کی بدولت اللہ پاک نے آج عزت و سرفرازی، کامیابی اور کامرانی عطا کی ہے۔ آپ ہماری طرف سے، خاص طور پر میری طرف سے، میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے، ہمارے کارپوریٹر حضرات کی طرف سے، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں کہ انشاءاللہ ہم مجلس کے پیغام کو اور مجلس کی پالیسی کو لے کر کے چلیں گے اور مالیگاؤں کی عوام کو جو ان کی چاہت ہے کہ مالیگاؤں تعمیر و ترقی کے راستے پر جائے، مالیگاؤں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو، تعلیم ہے اور صحت ہے اور اسی کے ساتھ ہماری دیگر ضروریات، ان تمام کو پورا کرنا جو آپ کی چاہت ہے، انشاءاللہ ہم اپنی بس بھر پوری کوشش کر کے ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ میں ان حضرات سے اپنا یہ پیغام ان ذمہ داران تک پہنچوانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے جو ہم کر سکتے ہوں وہ کریں گے۔ اور جس طرح ہم نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے اور اکبر الدین اویسی صاحب سے حیدرآباد میں ملاقات کی تھی اور حیدرآباد میں جس طرح انہوں نے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور دیگر ضرورت مندوں کے لیے جو انتظام انہوں نے کیا ہے، اس بات کا اظہار اکبر الدین صاحب نے کیا تھا کہ ہم مالیگاؤں میں اسی طرز پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا تعاون ہمیں ملا اور آپ کا ساتھ رہا، انشاءاللہ ہم مالیگاؤں کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا دے کر کے جائیں گے کہ تاریخ ہمیں بھی یاد کرے گی، آپ کو بھی یاد کرے گی، ہمارے ساتھیوں کو بھی یاد کرے گی۔ میں پھر اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے، اپنی طرف سے ان دونوں صاحبان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور خاص طور پر نقیب ملت اور حبیب ملت کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور انہوں نے ہمیں امیدواری دی اور مالیگاؤں کی عوام نے آپ کے اعتماد اور بھروسے کو باقی رکھا اور مجلس کے نامزد کردہ امیدوار کو 1,17,000 ووٹیں دے کر کے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ مالیگاؤں والوں کا مجھ پر احسان ہے، میں انشاءاللہ اسے زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ کوئی انسان آپ کسی انسان کو قرض دیتے ہیں
تو آپ اپنا قرض ضرور وصول کرتے ہیں. اگر وہ قرض نہیں دیتا تو آپ کسی بندے کو بھیجائیں گے یا خود جائیں گے یا مطالبہ کریں گے, اس کے بعد میں وہ کہے گا کہ میں آج نہیں کل دے دوں گا. اسی طرح میں آج مفتی صاحب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں, بے شک مجلس اتحاد المسلمین مفتی صاحب آپ کے قرض دار ہے 5 سال کے لیے. اگر فرض کریے کوئی جائز کام ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کا جواب ہم کو اوپر والے کو دینا پڑے گا. ہم آپ کا ووٹ ایک قرضے کی حیثیت سے رکھے ہیں. یہ 5 سال کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو تو اب جتا کے لا لیے ہیں, مفتی صاحب کا یہ 5 سال کیسا ہوئے گا, مالیگاؤں اندھیرے میں چلے جائے گا, ایسا ہوئے گا. یہ لوگ کی غلط فہمی ہے. ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر ہمیشہ جو بھی مظلوم ہے, جو پریشان حال ہے, اس کی مدد کرنا ہمارا اولین فرض ہے. تو میں پھر ایک مرتبہ مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ جو حضرات میرے کارپوریٹرز ہیں ان سب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. جنتا دل کے کارپوریٹرز کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. آپ سب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. مالیگاؤں کی عوام کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. مالیگاؤں کی میری ماں اور بہن کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. مالیگاؤں کے میرے بزرگ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. مالیگاؤں کے ان نوجوانوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. بے شک اگر صحیح پوچھے تو مبارکبادی کے حقدار آپ لوگ ہیں, ہم نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے, ہمارا کام تو لڑنا تھا, آپ کا کام ہمارے کو کاندھے پہ بٹھانا تھا. آج آپ نے مفتی صاحب کو کاندھے پہ بٹھا کر یہ ثبوت دے دیا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ہماری صحیح خدمت کر سکتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی اجازت سے, وہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے پہلے 7 کارپوریٹر تھے جو آپ کے ہاں نگر سیوک بولتے ہیں. اللہ کے کرم سے مفتی صاحب جب مجلس میں شامل ہوئے, اپنے ساتھ 20 نگر سیوکوں کے ساتھ آئے ہیں, تو اب مجلس اتحاد المسلمین کے 27 نگر سیوک ہو گئے ہیں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 27 نگر سیوک مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مستقیم ڈگنیٹی صاحب کے جو 5 نگر سیوک ہے وہ جنتا دل کے ہیں. ان کی تائید ہمارے کو تھی. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بڑی محنت کو چیز کیا ہے. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے, مفتی صاحب کے انڈر میں 27 نگر سے 27 نگر سیوک مجلس کے ہیں اور ماں باقی جنتا دل کے ہیں. مگر مجلس کے نگر سیوکوں کے اوپر پورا مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ مجلس کی پالیسی ہے. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ کی ذات سے پورا بھروسہ ہے کہ مفتی صاحب مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت اور حبیب ملت کی پالیسی پہ چلیں گے اور ان سے پوچھ کر ہر فیصلہ کریں گے. یہ اللہ کا لاکھ فضل و کرم ہے. اللہ نے جس عزت سے آپ کو نوازا ہے اس عزت کی آپ کو لاج رکھنا ہے اور یہ عوام کو مایوس نہیں کرنا ہے. آخری میں آپ سے ہمارا آنے کا خاص مقصد یہی ہے. آپ لوگ 24 کو رزلٹ نکلا, 25 کو جمعہ تھا, 25-26 مفتی صاحب ملے, تو ہماری پارٹی سے ہم کو حکم ہوا کہ آپ کا کام ہے ووٹ مانگنے کے لیے, تو آپ شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو جانا بے انتہا ضروری ہے. تو ہم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. ہم نے جو 12-13 دن رہا اس کے اندر ہم کو ایک بات بڑی اچھی لگی کہ مالیگاؤں کے اندر مہمان نوازی کا جواب نہیں ہے. جواب نہیں ہے. کئی جگہ تو آدمی بنا کھانے کے مر جاتا ہے, یہاں پہ تو کھلا کے مار دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ مہمان نوازی نہ صرف مالیگاؤں کی ہے, اس سب نوازی کے علاوہ یہ 2 خادم یہاں حیدرآباد سے آئے تھے, ایک پیغام لے کے آئے تھے صدر مجلس کا اور حبیب ملت اکبر صاحب کا. وہ پیغام کو آپ نے قبول کیا اور مجلس کو کامیابی دے دی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میری تقریر ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی یوم فتح میں اکبر الدین اویسی انشاءاللہ
मालेगांव आने वाले हैं, ये मिलादुल नबी हो जाने दीजिए। उसके बाद में मुफ्ती साहब, हमारे डॉक्टर खालिद साहब, ये लोग अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक जलसा रखेंगे। तारीख लेके देना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी तमाम चीजें आपकी है। और सुनने के लिए तो आप लोग बेचैन हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यौम फतेह में इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन अवैसी आएंगे। अब रहा सवाल कोई आदमी, मैं तो भाई आपका अपना भाई हूँ, मैं तो हमेशा आना चाहता हूँ। मेरा अपना हल्का है, मेरा अपना हल्का देखते हुए जब जब मेरी पार्टी मुझे कहेगी, मैं अपनी खिदमत देने के लिए पूरी तौर पे तैयार हूँ। और मेरे छोटे भाई मोहम्मद माजिद हुसैन साहब भी पूरी तौर पे तैयार है, क्योंकि आप जानते हैं माजिद हुसैन साहब जो साबिक मेयर है, इनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहता है। ये पिछले 5 साल बिहार में मेहनत करे, अल्लाह ने उसको भी सुन लिया। आपके साथ 21 तारीख की पोलिंग में वहां पे भी पहली मर्तबा ऐसा चमत्कार हुआ कि कांग्रेस की सीट और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई वहां पे, और मजलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। और ये लोग गलत सलत बातें करते हैं। अरे भाई अभी क्या बताऊं, मुफ्ती साहब ओमन बैठे हैं, ओमन बड़ों के सामने या बुजुर्गों के सामने या ऐसे लोगों के सामने मैं ज्यादा मिसाल नहीं देता। जो लोग घूम रहे हैं उनको इतनी फिक्र नहीं है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। आप मस्जिद के इमामों के बारे में अगर ये आपका अगर सोच है, तो मैं समझता हूँ आपके उतना बदबख्त कोई नहीं है जिसके पीछे हमारी नमाज होती है। वैसे टाइम पे तकरीबन मालेगांव का हर मुसलमान कोई ना कोई इमाम के पीछे पड़ता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इत्तेहाद की बात करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी ये नहीं सोचती है कि तुम फलाना है, तुम फलाना है। जिसका सबूत पहला आपको मिल गया है, ना कोई लकनी है, ना कोई अंसारी है, ना कोई शिया है, ना कोई अहले हदीस है, ना कोई जमात का है, ना कुछ है। सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बुनियाद पे एक है। जैसा मैं कहा था, इंशाअल्लाह ताला माजिद साहब ने भी जो कहा था, जो हजरात किसी वजह से गुमराह है, मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ। आ जाइए, आप हम मिलके एक जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब दोबारा कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, यहाँ पे नगर सेवक का इलेक्शन आएगा, हमारा टारगेट वो होना चाहिए इंशाअल्लाह कम से कम 50 नगर सेवक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहेंगे। और एक औरंगाबाद में खासदार यानी एमपी बना तो लोग परेशान थे। आइंदा इंशाअल्लाह मालेगांव का एमपी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रहेगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरुआत हुई है। अभी देखते जाओ हमारा सफर कहाँ तक चलने वाला है। अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की कोशिश रही और आप लोगों में इत्तेहाद रहा, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई हमारे को गिरा सकता है, क्योंकि हैदराबाद में एक इत्तेहाद है। आज मजलिस को यानी नकीब मिल्लत को हराने के लिए हर हिसाब की हमेशा कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह ने इतनी बड़ी मोहब्बत रखा है उनको। जब जब उनको इस तरीके से तकलीफ देते हैं, वो टाइम पे हमेशा अल्लाह ने बुलंदी से नवाजता है और उनको कामयाबी देता है। उनका मकसद एक ही चीज है, आपकी आवाज बने और आपकी आवाज बन के आपके जो जो मुतालिबात है या आपके जो भी परेशानियां हैं उसको ठीक से बयान करे। मैं इसी के साथ मुफ्ती साहब से ये अदबन दरखास्त करते हुए इजाजत लेना चाहता हूँ। यहाँ की अवाम को आपसे भी बहुत से उम्मीदें हैं, आपसे भी बहुत से उम्मीदें हैं, और आप इनकी उम्मीदों पे इंशाअल्लाह लाजिम न सिर्फ पूरे तौर पे उतरेंगे, बल्कि जो लोग आपको एतराज करे थे वो लोग आके बोलेंगे कि वाकई अगर कोई काम कर रहा है तो वो मुफ्ती साहब। फरमा आली जनाब इज्जत माब मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आमदार मालेगांव शहर, आली जनाब इज्जत माब जाफर हुसैन मेराज साहब MLA तेलंगाना, मेरे बरादरान खालिद भाई साहब, मुख्तदिन भाई साहब, इजाज भाई साहब, दीगर कायदीन, यहाँ में बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज आपके दरमियान में आने का बस मकसद ये था कि हम यहाँ पे आए, मुफ्ती साहब से मिले, तमाम जिम्मेदारान ने
जो इसमें इस अजीम शान कामयाबी में मुझे इत्तेहाद मुस्लिमीन के सफ़र में एक अहम रोल अदा किया, उनसे मुलाकात करें और आप तमाम से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस की तरफ से और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से आपके सामने इज़हार तशद्दुद करें और आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। बेहद ये एक लंबा सफ़र था जिसमें हम सब ने मिलकर हर एक फर्द ने, चाहे वो कायदीन हो जो स्टेज पे बैठे हो, चाहे वो आप लोग हो जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की, हर एक शख्स ने अपना एक अहम रोल अदा किया और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और उनके उम्मीदवार मुफ्ती साहब की कामयाबी में अपना एक अहम हिस्सा अदा किया। ये जो कामयाबी आज हमें मिली है ये कोई मामूली कामयाबी नहीं, ये आपके और हमारे इत्तेहाद की एक मिसाल मालेगांव में रखी गई कि जब ये बताया गया कि जब हम इत्तेहाद के एक कश्ती पर अगर हम आ जाएं, सब को छोड़ के, मसलक को छोड़ के और बहस से कलमे की बुनियाद पर जब हम एक हो जाएं तो हम तारीख लिख सकते हैं जो आपके शहर ने तमाम हिंदुस्तान को दिया। मैं इसलिए आप तमाम का बेहद ममनून हूँ और आपने एक मिसाल कायम करके अपने इत्तेहाद का एक बेपनाह सबूत हिंदुस्तान को दिया। इसलिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये पहले दौरे से या वो पहला जलसा हो, हर एक जलसा आप लोगों ने उसमें शिरकत होते हुए उसको कामयाब किया, हर एक दौरा हो आप लोगों ने उसमें शिरकत करते हुए कामयाब किया और आप लोगों ने हर एक शख्स जो मालेगांव शहर का है, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मेरी इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनें हो, हर किसी ने वोट निकल कर डालते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और मुफ्ती साहब को कामयाब किया। यहाँ पे हमारा मुकाबला था, बेशक कई इल्जामात लगे और हमने हमारे स्टेज से सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम दिया और इत्तेहाद के पैगाम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने उस धूप के मौसम में, उस तकलीफ के मौसम में अपने घरदार को छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर, जो लाइनों में कतारों में ठहर कर जिन्होंने भी हमें वोट दिया, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हम साथ ही साथ उनका भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हमें हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखा और अपने अजीम और शान जो वोट का जो फर्ज जो हिंदुस्तानी करता है वो एक अदा किया। बेशक आज उन्होंने हमें वोट नहीं दिया पर हमें यकीन है कि जो अक्सरियत तबकात में जो मुफ्ती साहब ने और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो भरोसा जताया है, हम उनके भरोसे पे और आपके भरोसे पे उठते हुए जो भाई हमसे दूर है, हम इंशाल्लाह अपने काम की बुनियाद पे इंशाल्लाह उनको भी करीब करते हुए एक इत्तेहाद का बड़ा पैगाम देते हैं। हम उनमें से नहीं है जो कौम को तोड़ते हैं या इंतशार पैदा करते हैं। हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और हमारा पैगाम इत्तेहाद मुस्लिमीन है और हमको सबको इत्तेहाद में लेते हुए सबका काम करते हुए बोलना है। हमें इंतखाबात का वक्त होता है और जब यहाँ पे जब मुफ्ती साहब एक जिम्मेदार के तौर पे यहाँ से उभरे हैं आप लोगों की मेहनत से, तो ये बिल्कुल हर किसी के शहर के, हर एक शहरी के जो मालेगांव शहर में आता है उनके आमदार है। हम बिल्कुल ये नहीं देखेंगे किसने हमारा साथ दिया, किसने हमारा साथ नहीं दिया। हम बस यही देखेंगे कि हमें काम करना है और हर एक गली जात में काम करते हुए, चाहे वो बर्फी, बल्दी, आब रसानी, तिब्बी, तालीमी या माशी मैदान हो, हर एक मैदान में हम काम करते हुए उनका भी भरोसा जीतेंगे जो कभी हमसे दूर थे। वही बात, इंतखाबात हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने भी कई बयानात सुने, ये उनके दिमाग का तारुन है, ये उनके दिमाग की सोच है। यहाँ पे मैं ठहरे हुए ये भी कहता हूँ, इंतखाबात खत्म हुए हैं, जज्बाती तकरार भी आपके सामने जो हालात भी जो हमने हिंदुस्तान के रखे और बेशक हमने हक के आपके सामने रखे। इंतखाबात जब खत्म होते हैं तो यहाँ पे कुछ हालात कुछ अलग हैं। बेशक हम सबको साथ लेके चलेंगे, मगर यहाँ से जो मैं मुखातिब कर रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है जैसा चाहे हर हिंदुस्तान के कोने कोने में रहता है कोई ना कोई अहदेदार, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, हर एक मीटिंग को कवर करते हैं। मैं स्टेज से एक जिम्मेदारी के तौर पे आपसे ये कह रहा हूँ कि इन जोकरों को रोको, इन जोकरों को रोको जो बेबुनियाद बयानात कर रहे हैं।
हमारी तालीम इत्तेहाद है। हम जीत का जश्न मनाएंगे बर इखलाक के साथ। हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मगर हम जमीन पर रहते हुए आवाम की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें जीत दी और हम वही बुजुर्गों का एहतराम करते हुए उनके साथ चलते हुए काम करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें जीत से नवाजा, मगर हम वही नौजवानों को अपने साथ लेते हुए हमारे पीछे नहीं चलाएंगे, साथ लेते हुए चलाएंगे। मगर अगर कोई ये गलत फैमिली में है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कोई वर्कर को कोई नुकसान पहुंचा तो सकता है, तो खाक देखना छोड़ दे, खाक देखना छोड़ दे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदा कौम की जिंदी आवाज और बेबाक आवाज है, जो वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालते हुए उनसे बात करती है, उनसे क्या उनके बाप से नहीं डरती। ये जो पिद्दे पिद्दे है, ये पिद्दे ही रहे। बस आपके जरिए मैं उन अहदेदारों को समझाना चाह रहा हूं, हम यहाँ शहर के जिम्मेदार हैं और हमारी जिम्मेदारी है आवाम की खिदमत करना, गरीबों का फायदा करना और इस शहर को पुरसकून माहौल में रखते हुए इसको तरक्की के बुलंदियों पे पहुंचाना। मगर अगर ये अहदेदार इन जोकरों को अगर नहीं संभालेंगे तो हम भी हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। हम जानते हैं इनकी औकात कब कहाँ दिखाना, कब किस तरीके से बिठाना। बस आप लोगों से ये गुजारिश है इन अहदेदारों से कि हमें हमारी असलियत पे आने मत दो, वरना इन ये जो बयानात कर रहे हैं और जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्करों के ताल्लुक से सोच रहे हैं, इनको जब हम जवाब देने निकलेंगे तो इनको ये जमीन भी तंग हो जाएगी और ये अहदेदार भी हमें नहीं संभाल सकेंगे। हम हमारे जो हुदूद है बस उस हुदूद में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उनका भी तहे दिल से एहतराम से सर आंखों पे उनका भी एहतराम करते हैं जो हमारे साथ नहीं थे और जो हमें वोट नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं इस स्टेज से मुफ्ती साहब को गवाही में रखते हुए मैं ये जानता हूँ, मैं मुफ्ती साहब की अवामी खिदमत की नीयत को जानता हूँ, उनके दिल में जो बात चल रही है मालेगांव की शहर की तरक्की की वो मैं जानता हूँ, उनके ख्यालात जो मालेगांव शहर को लेकर है वो मैं जानता हूँ, उनकी फिक्र जो मालेगांव शहर को लेकर है वो मैं जानता हूँ और मुझे यकीन है उनके इस जज्बे से इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये इलेक्शन का आने वाले इंशाल्लाह 10 इंतखाबात तक भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये तय रहेगा और इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है मुझे। बस फिर से आप तमाम से ये गुजारिश करता हूं कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही हैं। हमारा काम इत्तेहाद का है, हम इंतशार नहीं चाहते और न हम कभी इंतशार करेंगे। बस इस कामयाबी को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह आप जो मशवरे दे सकते हैं, आप जो तरक्याती काम ले सकते हैं, आपके सामने अगर कोई परेशानी आती है तो उसे मुफ्ती साहब के सामने लाइए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और तमाम जिम्मेदारों के सामने लाइए। एक बात तो तय है, यहाँ पे किसी को गैब का इल्म नहीं, कोई ये नहीं जान सकता कि किसको क्या तकलीफ है। हाँ बेशक ये है कि जब आप और हम जब जिम्मेदारी के तौर पे हमारे जिम्मेदार के पास ये तकलीफात लेके जाएंगे, बेशक वो उसकी नुमाइंदगी करते हुए उसकी पुरजोर कोशिश करते उसको हल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप और हमने मिलकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और मुफ्ती साहब का अजीम शान कामयाबी दी, हमारा सफर यहाँ पे नहीं खत्म हुआ है, हमारा सफर यहाँ से शुरू हुआ है और आपकी और मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है। आपकी और मेरी उतनी ही जिम्मेदारी शहर को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने की जितनी मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है। हम सबको इस टीम वर्क को आगे बढ़ाते हुए मालेगांव शहर को तरक्याती की बुलंदियों पे लेके जाना है। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ मैं आपसे इंशाल्लाह आगे भी जलसे होंगे जहाँ तफसीली तौर पे मुखातिब होंगे। बस ये तो मेरे साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस मैदान जंग में इस फतेह के रास्ते में साथ थे, इसलिए सिर्फ आपके सामने दिल की बात कहा हूँ। बस आपसे ये गुजारिश है कि हमारे सफर को आगे लेके आते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को और बड़ी तादाद में यहाँ पे कामयाब करना है, इंशाल्लाह नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। फिर से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ये बुलंदियों पे पहुंचाया। आपका शुक्र है, आप लोगों का साथ है इंशाल्लाह। ये साथ से मुझे उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और बुलंदियों पे जाएगी, आपके कांधों से आपके हौसले से आगे बढ़ेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।